بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم ایشو اس وقت ملک بھر میں چل رہا ہے اور وہ ایشو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے، اور اس پر بہت باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور بہت اس پر احتجاج کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام اور شریعت کے خلاف بل ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف شریعت اور خلاف اسلام ہیں، ان کو نکلنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے آواز جو ہے سینٹ کے فلور پر جو ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق خان صاحب، انہوں نے یہ آواز بلند کی اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا، اور پھر اسمبلی کے فلور پر اس پر جو ہے احتجاج بھی کیا، اس کی مذمت بھی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ترمیمی جو ہے بل جمع کروایا اسمبلی کے فلور پر کہ اس میں جو ہے یہ ترمیم کی جائے، جو خلاف شریعت اور خلاف اسلام جو ہے اس میں چیزیں ہیں وہ اس سے نکالی جائیں۔ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سینیٹر صاحب نے جو اس حوالے سے بیان دیا ہے اس کو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ حکومت نے ایک بل انٹروڈیوس کیا ہے جس کا نام ہے پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن بل 2021۔ یہ اس کی کاپی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ فی الحال یہ بل لابنگ کے پوزیشن میں ہے، اس کے اوپر حکومت لابنگ کر رہی ہے، اور کچھ پارلیمنٹیرینز کو انڈیویجولی یہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، جس میں ایک میں بھی ہوں، اس لیے کہ میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی، پارلیمانی کمیٹی فورس کنورژن کے حوالے سے، اس کا میں ممبر ہوں۔ اس بل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہے، خلاف قرآن و سنت ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، اور مختصراً یہ کہ یہ بل جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے نام پر اسلام سے جبراً روکنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے بین الاقوامی ساہوکار اداروں اور بین الاقوامی NGOs اور مغرب، یورپ اور امریکہ کے دباؤ پر۔ 25 اگست کو اخبارات کے اندر خبر آئی تھی کہ 24 اگست کو حکومت نے کچھ علماء اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ان کیمرہ اجلاس کیا، اور اس میں لابنگ کی اس بل کے حوالے سے علماء اور اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ اس اجلاس میں علماء نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اس بل کے اوپر اور اس کے مختلف مندرجات کے اوپر۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن میں مختصراً 3 چیزیں آپ لوگوں کو منشن کروں گا۔ ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ 18 سال کی عمر تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 3 جو اس کا کلاس 3 ہے اور کلاس 6، اس میں کھل کر لکھا ہوا ہے کہ 18 سال تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور 18 سال کی عمر تک اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا اسلام قبول کرنا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے گا، ایک تو اس کی عمر 18 سال سے زائد ہونی چاہیے، دوسرا وہ سیشن جج کو درخواست دے گا، تو سیشن جج اس درخواست کے بعد اس کو 90 دن اپنی کسٹڈی میں رکھے گا، نگرانی میں رکھے گا، اس کو تقابل ادیان کا مطالعہ کرائے گا، اور 90 دن کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ انکار کر دے کہ میں نے اب نہیں کرنا ہے، تو جن لوگوں نے ان کو اسلام قبول کرایا ہے ان کے خلاف اس قانون کے تحت فوری طور پر مقدمہ درج ہوگا۔ اس مقدمے میں 5 سے لے کر 10 سال تک قید اور 1 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ یہ اس کے اندر واضح طور پر وہ لکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا بل ہے کہ جس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب، پہلے سندھ حکومت نے اسی طرح کا، یہ آئیڈینٹیکل بل ہے جو سندھ حکومت نے پاس کیا تھا، اور اسمبلی نے پاس کر لیا تھا، گورنر نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس لیے وہ لیپس ہو گیا، وہ قانون نہیں بن سکا۔ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر ایک فتویٰ دیا تھا، اور یہ وہی بل ہے، اس لیے اس بل کے اوپر بھی اس فتوے کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ میرے سامنے حضرت مولانا مفتی تقی محمد عثمانی صاحب، ان کا فتویٰ ہے جو انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے اس کو خلاف اسلام، خلاف قرآن و سنت قرار دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے یہ بہت شرمناک حرکت ہے، اسلام مخالف حرکت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت مسلسل اسلام اور شعائر اسلام کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے۔ وقف پراپرٹی بل، انہوں نے وقف کے ادارے کو جو 1400 سال کی ہمارا سرمایہ تھا
उसका गला घोंटने की कोशिश की है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल अभी तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल नहीं भेजा गया है, उसमें हमारे खानदानी निज़ाम का शिराजा बखेरने की कोशिश की गई है। इसी तरह जो प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट और बहुत से ऐसे कानून साजी हैं जो FATF, मगरिब, यूरोप और अमेरिका की खुशनुदी के लिए किए गए हैं, हम उस सब को नामंजूर करते हैं, हम सबको मुस्तरद करते हैं। मैंने उन ऐसे तमाम बिलों के खिलाफ पार्लियामेंट और सेनेट के फ्लोर पर बात उठाई है, उसके खिलाफ तरामीम पेश किए हैं और मीडिया के अंदर भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। इंशाअल्लाह ये जो मौजूदा बिल है जिसकी लॉबिंग ये लोग कर रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन एक्ट 2021, ये इस्लाम मुखालिफ बिल है, नामंजूर है। और पहले जब भी इस्लाम मुखालिफ बिल मंजूर किए गए हैं या मंजूर करने की पोजीशन में है, प्रोसेस में है, उसको भी हम मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के फ्लोर पर पहले की तरह इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अदालतों में इस्लामी जो वफाकी शरी अदालत है उसके अंदर उसको चैलेंज करेंगे और उसके साथ साथ मीडिया में अवाम के पास जाएंगे। इस्लाम पसंद अवाम जो कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, जो अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो अपने अक़दार से मोहब्बत करते हैं, उनकी अदालत में जाएंगे और उनको जगाकर इस बिल के खिलाफ, इस्लाम मुखालिफ बिल के खिलाफ इंशाअल्लाह उनको मुनज़्ज़म करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ट्रांसजेंडर के हवाले से जब भी हमारे जहन में कुछ सवालात उभरते हैं तो ख़ास तौर पे जो एक तबका है मुखन्नस भी जिन्हें कहते हैं और ख्वाजा सरा भी कहते हैं, बाज़ लोग हिजड़ा भी कहते हैं, तो उनके हवाले से जो है ना फौरी तौर पर हमारे जहन में आता है। तो उन्होंने भी इस हवाले से एहतजाज किया, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जी, ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ मुल्तान में आज ख्वाजा सराही सरापा एहतजाज हैं और उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ कुछ ख्वाजा सरा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वजूहत है, किस बिना पर आप एहतजाज कर रहे हैं। ये तो आपके लिए बिल पेश किया गया था। जी बिल्कुल, बिल तो हमारे लिए पेश किया गया था, आधे से ज़्यादा बिल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ हमारी आड़ के अंदर कुछ जिन्सों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। हम जिन्स परस्ती जिसकी वजह से जन्म ले रही है, 13,000 औरतों ने मर्द लिखवा लिया और 14,000 मर्दों ने जो है वो अपने आप को औरत लिखवा लिया है। तो ये हमारी आड़ के अंदर किन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जहाँ से गैर मुल्की फ़ंडिंग लेते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से ये काम हो रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे पे काम हो रहा है। ये इस्लामी माशरा है, हम अपने पीछे किसी को छुपने नहीं देंगे। शरई हैसियत जितनी हमारी है, जितनी हमारी तहजीब, कल्चर, सकाफत है, उस हद में हम लोग रहना चाहते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन कम और मर्द और औरत को ज़्यादा दे रहे हैं, इसी की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बोलचाल आया हुआ है और लोग सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग सवाल कर रहे हैं और ख्वाजा सरा का एहतजाज जारी है। उनका ये कहना है कि ट्रांसजेंडर बिल में जो है कुछ जो हर्डल्स हैं जिसकी वजह से जो है ये सराप एहतजाज। इनका ये कहना है कि इसकी जब तक इस ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से जो है तरामीम नहीं की जाती उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इस पर एहतजाज किया है और अब सदाए एहतजाज बुलंद होना शुरू हो गई है और JUI फ़े के कुछ रहनुमाओं ने भी इस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है और बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें जो है तरामीम की जाएँ और फौरी तौर पर की जाएँ। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक खान की जो तरमीमी बिल है वो तो जमा हो चुका है और उस पर जो है कायमा कमेटी जो है सेनेट की वो गौर भी कर रही है, इस पर गौर शुरू हो गया है और इसका जायज़ा लिया जा रहा है और ये बिल जो है वफाकी शरई अदालत में भी पेश किया गया है ताकि जो है इसमें जो है वो तरामीम की जा सकें जो खिलाफ शरीयत और खिलाफ कानून है। और नाज़रीन, ये जो एक्ट है इसके हवाले से ख़ास नुक्ता ये बताया जा रहा है कि कोई भी फ़र्द जिसको खातून बनने का शौक़ है या फिर मर्द बनने का शौक़ है खातून को, वो नादरा में जाकर जो है वो तस्दीक करवा सकेगा, नादरा से को बता सकेगा कि जनाब मैं अपनी शक्ल शबाहत जो है वो तब्दील करके, यानी अगर वो औरत बनना चाहता है, अल्लाह ना करे ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ये बड़ी खिलाफ शरीयत बात है क्योंकि कुरान और इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देते, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं दी जाती कि कोई मर्द अपने आप को जो है खातून बनाए या उसकी शक्ल शबाहत इख्तियार करे या कोई खातून जो है मर्द बनने की कोशिश करे। तो इस बिल के हवाले से जो एक फ़ायदा उन लोगों को पहुंचाया गया है ये है कि वो नादरा में जाकर जो है बता सकेंगे कि हम जो है वो मैं खातून हूँ और वो नादरा जो है उसकी इस तस्दीक पर जो है
जो है उनको की जो है वो जिन्स तब्दील कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई फ़र्द जो है ख्वाजा सरा बनना चाहता है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेगा। इसके अलावा जो है कोई औरत जो है अगर चाहेगी कि मैं मर्द बन जाऊं तो मर्दानी वजाहत इख्तियार करके जो है वो वहाँ जाकर जो है बता सकेगी कि जी मैं मर्द हूँ। तो इसके लिए जो है होना तो ये चाहिए कि कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें ये फ़ैसला हो कि ये फ़र्द जो है ये औरत या मर्द जो है ये जो चीज़ ख़ुद को ज़ाहिर करने यहाँ पर आया है तो क्या ये वाकई दुरुस्त बात है। पूरी डॉक्टर्स की एक टीम होनी चाहिए जिसके नतीजे में जो है ये पता चलाया जा सके कि ये मर्द है या औरत है। और इस तनाजुर में कहा जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल है इसमें जो एक बड़े पैमाने पर जो है एक बुराई फैलने का अंदेशा है। जो हम सुनते हैं कौम लूत में जो मर्ज मौजूद था खुदा न ख्वास्ता वो ये लोग इख्तियार करेंगे। इस हवाले से मैं कुछ और आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखना चाहूँगा। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 से फ़ायदा उठाकर मर्द से औरत के लिए 16,000 लोगों ने जो है इस एक्ट से फ़ायदा उठाया। औरत से मर्द बनने के लिए 12,154 अफराद ने फ़ायदा उठाया। मर्द से ख्वाजा सरा बनने के लिए 9 अफराद ने, ख्वाजा सरा से औरत बनने के लिए 9 अफराद ने, जबकि ख्वाजा सरा से मर्द बनने के लिए 21 अफराद ने जो है इस बिल से इस्तिफ़ादा किया। और मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि सेनेट में ट्रांसजेंडर बिल पास किया गया था तो ये जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें यकीनी तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बेहयाई और फहाशी के ज़ुमरे में आती हैं और एक ऐसा जो है माशरे के अंदर एक बेरारवी पैदा करने की कोशिश के ज़ुमरे में आती है। उस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं, यकीनन आप जान भी रहे होंगे। कुछ मैंने आपको बताया कि अब कोई भी फ़र्द जो है जाकर नादरा में अपने आप को जो है मर्द या औरत ज़ाहिर कर सकेगा और इस बिल के ज़रिए से इस बिल से फ़ायदा उठाकर, तो इससे यकीनी तौर पर बेहयाई का तूफ़ान आएगा। नाज़रीन ये बात भी बहुत अहम है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 ख़वातीन सेनेटर्स ने ये बिल पेश किया था 21 अगस्त 2017 को। इनके नाम भी मैं बताना चाहूँगा। सेनेटर समीना आबिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सेनेटर कलसूम परवीन है मुस्लिम लीग नून की, और इसके साथ सेनेटर रुबीना खालिद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और सेनेटर रुबीना इरफान इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है। तो ये 4 सेनेटर्स थी, इन्होंने पेश किया था ये बिल। अब आप देख लीजिए कि इस बिल के क्या खौफनाक नताइज आएंगे। इस पर ना सिर्फ जो है कलम उठाया जा रहा है, इस पर जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी बातचीत हो रही है, टॉक शोज़ हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इस बिल को खौफनाक करार दिया जा रहा है। एक और भी मामला जो हमारे यहाँ दरपेश है, एक तो पहले ही हम इस मसले से में उलझे हुए थे कि जो ख्वाजा सरा हमारे इर्द गिर्द माशरे में फिरते हैं, बहुत से लोग भीख मांगते हैं, कुछ शादियों में नाच गानों में शरीक होते हैं, तो इन पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि बहुत से लोग जो है ये कौम लूत वाले मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और ये बुराई की दावत दे रहे होते हैं। अगर आप शारह फैसल से आपका गुज़र हो तो रात को बहुत सारे ख्वाजा सरा आपको अंधेरे में जो है नज़र आएंगे खड़े हुए, और वो यकीनी तौर पर जो है मुख्तलिफ़ लोगों के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं ताकि लोग आएँ और उनको लेकर जाएँ, और वो बुराई फैलाने का भी ज़रिया बन रहे हैं। इस हवाले से टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा इब्हाम है और इसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और हुकूमत को इन ख्वाजा सराओं के हवाले से भी एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें ये तमाम लोग रजिस्टर्ड हों और उसका पता चलाया जा सके। एक ऐसा मेडिकल बोर्ड होना चाहिए ताकि वो पता चलाया जा सके कि वाकई में ये कुदरती तौर पर जो ये लोग हैं ये महरूम हैं, एक जिन्स के लिहाज से जो है एक महरूम हैं, या फिर जो है ये बनावटी हैं। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है एक इनकी लिस्टिंग करे, इनकी तादाद को काउंट करे, और फिर जो है उनके लिए जैसे कि बहुत सारी सहूलतें कहा जाता है, मुलाजमतों के हवाले से कोटे के बारे में बात होती है, या दीगर इनके जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से बात होती है, तो फिर उनको भी उसी दायरे में लाया जा सके। लेकिन ऐसे लोगों की बेखुदी होनी चाहिए और उन लोगों को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए जो खुद बनकर जो है वो इसमें आ जाते हैं और बुराइयां फैलाने का सबब बनते हैं।
تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، اس میں جو ہے حکومت کا فرض بنتا ہے. حکومت نے سینیٹر مشتاق کا جو بل ہے اس کی جو حمایت کی ہے، اور ناظرین اس حوالے سے حکومت کو بھرپور طور پر چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لے بجائے اس کا تحفظ کرنے کے، کیونکہ جب یہ مفتیان دین اور جو ہے بڑی شخصیات جو ہے دین سے جڑی ہوئی شخصیات جو ہیں اس حوالے سے بتا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں اس پر جو ہے حکومت کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس سے بے حیائی اور فحاشی پھیلے گی اور لوگ جو ہے پھر برائی کی طرف جائیں گے، اور ایک ملک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک میں ایک عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے. تو حکومت کو چاہیے اس پر بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائے اور اس پر بیٹھ کر جو ہے اس پر غور و خوض کیا جائے اور وہ شکیں اس سے فوری طور پر نکالی جائیں جس سے جو ہے مسائل جنم لینے کا اور اس ملک پر جو ہے مزید کوئی اللہ نہ کرے تباہی آنے کا اندیشہ ہو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سینیٹر مشتاق خان صاحب جیسے لوگ اس ملک کے لیے رحمت ہیں، جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور نہ صرف نظر رکھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو ملک کے لیے بہتری سمجھتے ہیں. صرف ان کا اپنا مفاد نہیں ہے، یہ تو دین اور اسلام کی خدمت ہے جس پر انہوں نے اسٹیپ لیا. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ غور و خوض کرے، قائمہ کمیٹی کو بھی چاہیے، اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس پہ فوری طور پر ایکشن لے اور جو شکے خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہیں اس کو ختم کرے. رنگ نو پر بھی بہت سی تحریریں لوگوں نے لکھی ہیں. میں ان تمام لوگوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کے لیے لکھا اور آواز اٹھائی، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اسلامی اور فلاحی ریاست ہو. قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی خواب تھا، ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھے اور ایک اچھے انداز میں جو ہے یہ ملک آگے بڑھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.